Subject History Class 10. Topic Post-Independence Era on the path of modernization in Jammu and Kashmir. यानी जब से आज़ादी से पहले हमारा जम्मू और कश्मीर मॉडर्नाइजेशन के पाथ पर कैसे था। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर किस तरह आफ्टर इंडिया got independence in 1947। आपको मालूम है कि हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947, जो हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। Jammu and Kashmir also entered a new path of development and modernization, और हमारा जम्मू कश्मीर भी दाखिल हुआ नए फेज में, तरक्की के नए फेज में और मॉडर्नाइजेशन में। The government started many reforms to improve the lives of the people, और हुकूमत ने, जो हमारी गवर्नमेंट उस वक्त थी हिंदुस्तान के कंट्रोल में, तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्लान्स हमारे लिए यहाँ बनाए। मॉडर्नाइजेशन मीन्स, अब मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा? डेवलपमेंट इन एजुकेशन, तालीम में तरक्की, ट्रांसपोर्ट में तरक्की, एग्रीकल्चर में तरक्की, इंडस्ट्रीज, कारखानों में, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन, और सेहत में, कम्युनिकेशन में, तालमेल में, इन चीज़ों को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। इनका मतलब है मॉडर्नाइजेशन। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल चेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर सियासी तब्दीलियां भी आई आज़ादी के बाद। आफ्टर 1947 ईस्वी के बाद जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का इलाक़ा हिंदुस्तान के साथ हुआ। The government worked to establish, गवर्नमेंट ने शुरू किया काम बनाना, डेमोक्रेसी रियासत में कायम करनी, एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को तरक्की देना। इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या आई बेटे इसमें? एंड ऑफ मोनार्की रूल, यानी जो शाही खानदानी राज वो खत्म हुआ। रूल ऑफ महाराजा रिड्यूस्ड, और उस वक्त महाराजा रूल करता था, हुकूमत करता था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो गया। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उन्होंने चुनी हुई गवर्नमेंट बनाई। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, और उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स का तारुफ किया। डेवलपमेंट ऑफ प्लान स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने तरक्की के लिए जम्मू एंड कश्मीर में भी प्लान बनाए, यानी मंसूबे बनाए। लैंड रिफॉर्म्स, और सबसे बड़ा, बहुत सारे इश्यूज थे, उनमें सबसे बड़ा इशू था लैंड रिफॉर्म, यानी ज़र्ई इस्लाह का कानून। वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स वाज द लैंड रिफॉर्म। बड़े इशू में सबसे बड़ा इशू जो था वो था लैंड रिफॉर्म। व्हाट वर लैंड रिफॉर्म? अब मसला है, क्वेश्चन है, ये लैंड रिफॉर्म क्या होता था, ये क्या था? द गवर्नमेंट
took land from big landlords and distributed it among poor farmers. یہ لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین لی اور چھوٹے چھوٹے فارمرز زمینداروں میں بانٹ دی. ایفیکٹس کیا ہوا؟ پیور پیزنٹس گاٹ لینڈ. غریب زمینداروں کو کیا ملا؟ زمین ملی. ایکسپلائٹیشن آف فارمرز ڈیکریزڈ. اور جو ان زمینداروں کا استحصال کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی لینڈ لارڈ جن کے پاس بڑے بڑے پلاٹ ہوتے تھے، زمین ہوتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے فارمرز کو زمین لگانے کے لیے دیتے تھے، اس کو کاشت کرنے کے لیے دیتے تھے. جس وقت شرط کا موقع آتا تھا، کاٹنے کا موقع آتا تھا، پھر یہ لینڈ لارڈز آتے تھے، ان کو یہ فصل لے جاتے تھے. وہ بیچارے جو زمین کا کام کرتے تھے، جو خون پسینہ ایک کرتے تھے، کماتے تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہتے تھے. تو اس قانون ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا گیا. ایگریکلچرل پروڈکشن امپرووڈ. اور جو فصل ہے زمین کے میں اس کو ترقی دی گئی. فارمرز بیکیم اکانومیکلی اسٹرانگر. اور زمیندار بھی روپیوں کے لحاظ سے، معاشی کے لحاظ سے بہت اچھے ہو گئے. امپروومنٹ امپورٹنٹ سلوگن. اب نعرہ ایک وہاں اس وقت لگایا گیا، اور یہ نعرہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ شیخ عبداللہ. جناب شیخ عبداللہ کے ساتھ یہ جاتا ہے، جس نے یہ ریفارم جموں کشمیر میں بنایا. یہ قانون لینڈ ریفارمز اسی نے یہاں بنائے ہیں. یہ اسی کی دین ہے جموں کشمیر کے لوگوں پر. لینڈ ٹو دا ٹیلر. اس نے قانون بنایا لینڈ ٹو دا ٹیلر. اس کا مطلب کیا ہے؟ لینڈ ٹو دا ٹیلر مینز دا پرسن ہو کلٹیویٹس دا لینڈ شوڈ اون اٹ. وہ آدمی جو جس زمین میں زمینداری کرتا ہے، جو اس زمین کو کماتا، وہ زمین اسی کی ہونی چاہیے. اس زمین پر اسی کا حق ہے، اسی کے مالکانہ حق. یہ کس نے بنایا یہ قانون؟ جناب شیخ محمد عبداللہ نے، جو ہماری جموں کشمیر کا کیا آزادی کے بعد پہلا چیف منسٹر بھی تھا ایک زمانے میں، اور پرائم منسٹر بھی تھا جموں کشمیر کا. وہ پھر ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر. پھر ایگریکلچر کو بھی تقویت ملی. ایگریکلچر واز ماڈرنائزڈ آفٹر انڈیپینڈنس. اور جو ایگریکلچر ہے، یہ ہماری کاشتکاری ہے، اس کو بھی ماڈرنائز کیا آزادی کے بعد. نمبر 1 بیٹر سیڈز انٹروڈیوسڈ. اچھے اچھے بیج انٹروڈیوس کیے گئے. یوز آف فرٹیلائزرز انکریزڈ. کھادوں کا استعمال بڑھ گیا. اریگیشن فیسلٹیز امپرووڈ. پانی کا انتظام کیا گیا، یعنی سنچائی کا اچھا انتظام کیا گیا. ماڈرن فارمنگ میتھڈز اڈاپٹیڈ. اور نئے نئے زمینداری کے میتھڈز اڈاپٹ کیے گئے. اس کے بعد مین کراپس جو ہماری جموں کشمیر میں ہے، وہ کیا ہے؟ رائس ہے، یعنی شالی. رائس ہے، ویٹ ہے، جن کو ہم گندم بولتے ہیں، کشمیری میں کنک بولتے ہیں، میز، مکی. ایپلز اینڈ سیفرانز ان کشمیر ویلی. کشمیر میں زیادہ ایپلز اور زعفران بھی بنتا ہے. گروتھ آف ایجوکیشن. پھر ایجوکیشن بھی بڑھ گئی. ایجوکیشن ایکسپینڈڈ ریپڈلی آفٹر انڈیپینڈنس. اور تعلیم کو بھی عام کیا گیا آزادی کے بعد. نیو اسکولز اینڈ کالجز اوپنڈ. نئے اسکول اور کالجز کھولے گئے. یونیورسٹیز اسٹیبلشڈ. یونیورسٹیوں کو قائم کیا گیا. ایجوکیشن فار گرلز انکوریجڈ. اور عورتوں کی تعلیم پر خاص دھیان دیا گیا. لٹریسی ریٹ انکریزڈ. اور خواندگی ریٹ یعنی ایجوکیشن تعلیم بڑھ گئی.
तालीम की रेट भी बढ़ गई। इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज, और हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी उनमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर थी और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर कारखानों की भी तरक्की हुई। द गवर्नमेंट इंकरेजेड इंडस्ट्रीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्तिसादी यानी माशी हालात को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज भी कायम की। नंबर 1 मैन इंडस्ट्रीज कौन थे? हैंडीक्राफ्टर्स, जो आपने पढ़ा हिस्ट्री में। हैंडीक्राफ्टर्स है, कारपेट वीविंग है, कालीन बाफी है, सिल्क इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है। बेनिफिट्स क्या इनका था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, यानी रोजगार के मौके फराहम हुए। ट्रेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और तजारत और काम में तरक्की हो गई। ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में दिया। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं सुबह इंशाल्लाह आपके सामने बता दूंगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छी तरीके से पसंद आता है तो सब्सक्राइब शेयर भी करना। खुदा सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10 टॉपिक हमारा है पोस्ट independence era on the path of modernization in Jammu and Kashmir. Wow. On the path of modernization in Jammu and Kashmir. 5 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए पहले लेक्चर में। अब दूसरे लेक्चर में छठा पॉइंट आया हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसपोर्ट में भी तरक्की हुई और कम्युनिकेशन तालमेल में, आने जाने और तालमेल में भी क्या हुई? डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई। तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं, यानी आज़ादी के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर में भी कौन कौन सी तरक्कियाँ हो गई। मॉडर्न रोड्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, नए रोड्स डेवलप हुए, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स लाइक एज, यानी जो ज़रूरी तरक्की थी हमारे लिए वो क्या थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, यानी रोडों को बनाया गया है और ब्रिजेस को बनाया गया है। बेटर बस सर्विसेज, बस सर्विस अच्छे तरीके से मुहैया रखी गई। क्यों रखी? टेलीफोन एंड पोस्टल सर्विसेज, और जो टेलीफोन या पोस्टल सर्विस एक्सपेंडेड, डाक खाने की सर्विसेज, उनको भी फैलाया गया। इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड, कॉल करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी इंट्रोड्यूस की गई। बेनिफिट्स क्या आया इनका, यानी फायदा क्या आया इन चीज़ों का हमें? दीज डेवलपमेंट्स कनेक्टेड रिमोट एरियाज विद सिटीज एंड इम्प्रूव्ड ट्रेड एंड ट्रैवल। इस तरक्की से क्या हुआ कि जो दूर दराज इलाके हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, मसलन गुरेज है, मच्छल है, करना है, बुढ़नमल है, जुमगंड है, ये हमारा लोलाब एरिया वर्नव है, ये आपका श्रान, ये सब रोड से कनेक्ट हो गए हैं और तरक्की भी हो गई। किसमें? ट्रेड में भी, तजारत में भी तरक्की हो गई और ट्रेवल आने जाने में भी हमें सहूलियत पैदा हो गई, सहूलियत हो गई। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, देखो सर कागज फेंक गए इन्होंने छिपा के। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसे समझ इस फेंके
The government improved healthcare facilities like as अब गवर्नमेंट ने तवज्जो दिया लोगों के सेहत के लिए भी और हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज भी मुहैया रखी. स्टेप्स टेकन क्या क्या इकदाम किए गए. हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स ओपनड, बड़े हॉस्पिटल्स और छोटे हेल्थ सेंटर्स खोले गए. वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड, वैक्सीन का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ. आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान हमारा पोलियो फ्री कंट्री है. यानी आज तकरीबन जो भी बच्चा पैदा होता है वो पोलियो फ्री होता है, यानी उसका तमाम एजा अच्छे होते हैं. पिछली बार पुराने जमाने में कोई हाथ के बगैर पैदा होता था, कोई पैर के बगैर, कोई लंगड़ा पैदा होता है, उसको भी खत्म किया गया. पोलियो फ्री कंट्री हमारा हिंदुस्तान है. मेडिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस और मेडिकल एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर में. रिजल्ट इसका ये है, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ फैसिलिटीज, यानी बेहतरीन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हमें मुहैया हुई. रिडक्शन इन डिजीज एंड डेथ रेट, और जो डिजीज है बीमारियों में कमी हुई. एंड डेथ रेट, अक्सर बेशतर बच्चा पैदा होते ही मरते थे, वो डेथ रेट भी खत्म हो गई. ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, अब टूरिज्म का भी बढ़ावा हुआ. जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ये जो जम्मू कश्मीर है ये टूरिज्म के लिए, सयाहों के लिए एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है. फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लाइक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, जो तमाम वर्ल्ड से हमारे जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं, उनके विजिट करते हैं. उनमें डल लेक है, गुलमर्ग है, पहलगाम है या सोनामर्ग है. इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, अब टूरिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है. ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आमदनी का जरिया बने. ये जगह हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल, और इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है. डेवलपमेंट ऑफ होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, होटलों की डेवलपमेंट भी हुई और ट्रांसपोर्ट की भी डेवलपमेंट हुई. कम है बहुत करना है इधर को था, बंद करना. चैलेंज इज फेस्ड, अब चैलेंज क्या है, यानी प्रॉब्लम्स क्या है. इतनी तरक्की भी हुई मगर चैलेंज भी कुछ थे. डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन को देख के भी सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ है, कुछ मुश्किलात थे. लाइक एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी सियासी अफरा तफरी भी रही. अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का रोजगार भी नहीं है, बेरोजगारी थी, पॉवर्टी थी, नेचुरल डिजीजेस और कुदरत की तरफ से कुछ बीमारियां. रीजनल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, और रीजनल डिफरेंस जम्मू और कश्मीर और उस पर लद्दाख भी था, उनमें भी फर्क रही थी डेवलपमेंट में. कंक्लूजन इसका बेटा ये है, द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ब्रॉट मेजर चेंजेस. ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी आज़ादी के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई जम्मू कश्मीर में भी. रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में सुधार आया. एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ केयर helped region move towards modernization. इन चीजों ने रीजनों को मदद किया मॉडर्नाइजेशन की तरफ आने पर. although challenges होने के बावजूद भी the people of Jammu and Kashmir witnessed significant social and economic progress. इतनी चैलेंजेस होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा
رول ادا کیا سوشل اور اکنامک پروگریس میں آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد. جی سر. آج انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر بھی آج بہت رچ اسٹیٹ ہے جس میں ایگریکلچر بھی ہے, ہارٹیکلچر بھی ہے, سیفران بھی ہے اور ٹورزم بھی ہے. تو اس طرح آج ہم نے پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا آن دا پاتھ آف جموں اینڈ کشمیر کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ صبح میں اس کے کوسچنز آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے ساتھ آپ تیار رہنا کہ آپ کا ٹیسٹ جلدی ہی ہوگا نئے ہفتے میں. اس کے ساتھ میں رخصت لوں گا آپ سے. اللہ حافظ. بند کریو بند.